Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel Excel Your Economics. So in continuation of our video that we have discussed in my previous lecture, that we will discuss few questions, the typology of the questions which can come from this chapter in the board examination. Means how board will ask you the 1 mark questions in the next year. So here we are going to discuss some pattern of the question belonging to 1 mark so that you can get ready for scoring your 10 out of 10, and that will be done for each and every chapter after its completion. जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे हम उनसे रिलेटेड 1 मार्क के क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स में पूछे जा सकते हैं दैट वी विल डिस्कस. So here we have few questions taken from this segment, taken from the chapter Indian Economy on the Eve of Independence. Typology of questions for 1 marks. So here we have the first question. India had here now you can understand easily. The first question here itself indicate fill-ups. So here we are supposed to just fill the blanks. So here the first question is belonging to India had an dash economy before the advent of Britishers. So what we will write? Britishers के आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी? Independent. So our answer will be independent. यानी हमारी इकोनॉमी independent economy थी before the advent of Britishers. Next, policies of colonial government brought a fundamental changes in the structure of Indian economy, transforming the country into supplier of. हमने ये चीज़ बार बार डिस्कस करी है that Britishers tried to convert. Actually, they have converted our economy into the feeder economy by making the raw material supply. So what they have done? Raw material का supplier बना दिया हमें and the consumer of finished goods. Right. क्या करा? फिनिश गुड का हमें कंज्यूमर बना दिया. So consumer of finished goods you can write here. So this will be the complete fill up for your second question. Moving to the next one. Most studies defined that the country's growth of aggregate real output during the first half of 20th century was less than. ये क्वेश्चन भी हमने बार बार डिस्कस किया है कि हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट थे, नोटेबल इकोनॉमिस्ट, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब भी किया था. कैसे डिस्क्राइब किया था? दैट वी हैव डन ऑलरेडी. D² प्लस R² प्लस F² इक्वल्स टू नोटेबल इकोनॉमिक्स. सो D² हेयर इंडिकेट्स दादा भाई नैरोजी and William Digby. R here R.C. Desai and Rao, and F denotes for Findlay Shiraz. तो इन पांचों में से ही किसी ने एक एस्टिमेट दिया था जिसके अकॉर्डिंग दे हैव डिस्क्राइब कि हमारी इकोनॉमी में जो ग्रोथ थी दैट वाज लेस देन हाउ मच परसेंटेज? कितनी थी? यस, लेस देन 2%. कितनी थी? लेस देन 2%. सो दैट इज आवर आंसर बिलोंगिंग टू फिलअप्स. तो ये कुछ हमने फिलअप्स यहाँ पे सॉल्व किए. Now we are going for MCQs. Means in the question you will be given with 4 options. They will be very close. You have to find out the answer. NCERT में भी इसको बहुत clearly given किया गया है. That is whose estimate of national income and per capita income of India during colonial period was considered very significant. किसके estimate को हमने significant किया था? Notable economist हैं हमारे, हमने already discuss किया. D² R² plus F. राइट. तो 5 नोटेबल इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम पे, लेकिन किसकी स्टडी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई और माना गया कि येस दिस इज़ द रियल मेजर ऑफ आर नेशनल इनकम और दी पर कैपिटा इनकम. सो दैट वाज. जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? येस, योर आंसर विल बी बी, ऑप्शन बी, VKRV राव. इनके एस्टिमेट को ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना गया था. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जमींदारी सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन. कहाँ पर जमींदारी सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? जल्दी से सोचिए. हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि जमींदारी सिस्टम इनिशिएटेड. यस, कहाँ से? बंगाल. सो हेयर वी हैव द राइट आंसर एज ऑप्शन ए, बिकॉज बंगाल वॉज टेकन एज द ईस्ट इंडिया फर्स्ट कंपनी एस्टैब्लिशमेंट सिटी ऑल्सो, स्टेट ऑल्सो, and that too also the starting of जमींदारी सिस्टम. तो यहीं पे सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया गया था. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल
इंडियाज एग्रीकल्चर वॉज स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन। इसका क्वेश्चन का पहले मतलब समझना हमें कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो इंडियन एग्रीकल्चर था उसमें कमी थी इन्वेस्टमेंट की। तो किन किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की कमी थी? टेरेसिंग में, फ्लड कंट्रोल में, डिसैलिनेशन ऑफ सॉइल में, कि ऑल दी अबव में? हमने डिस्कस किया था जब एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इन माय वीडियोस दैट आई हैव क्लियरली मेंशन that we were facing the problem of terracing, flood control and desalination of the soil। यानी कहीं भी ब्रिटिशर्स किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। सो इन ऑल शॉर्ट आर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल दी अबव। तो ये सारे ही इस एरिया में ब्रिटिशर्स ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। वी वर स्टार्व्ड इन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर लोकेटेड? कहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल मिल लोकेटेड थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? एंड वी नो इट वेरी वेल दैट in all the set of states, you know that Gujarat and Maharashtra are the states which are producing more cotton and textile industries, right? Today also the major contribution of cotton as well as the textile industries belong to Gujarat and Maharashtra. So your answer is option C, Gujarat and Maharashtra, right here. Moving to the next question, that is टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन। जल्दी से याद आ गया होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। दैट इज यस ऑप्शन डी, इन 907। हमने कल पढ़ा भी था 19 नंबर मीन्स इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव डन दैट 19 नंबर हाउस का फोन नंबर ही स्टार्ट होता है 07 से, राइट? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year the first census of India was counted? That we have also done। मैंने बोला भी था in my previous video कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं डेट पूछने के, तो डेट को हमें याद करना है। yes, in which year? that is option number C, 1881, 1881, the year in which the first census of India was counted, but it was not successful counting। तो इसके बाद हमने 1891 से ही नए पीरियड को लॉन्च करके हर 10 साल में एवरी 10 ईयर्स पे हमने क्या करना शुरू किया? कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि हमने हर 10 साल में सेंसस काउंट करना स्टार्ट किया। तो सेंसस काउंटिंग का टाइम पीरियड क्या होता है? एवरी 10 ईयर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मोर देन डैश ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। समझने एक बात देखो, तो ये फिलिप स्पेस पे भी हो गया, बट साथ में इसमें क्या दे दिया है हमें? MCQs मीन्स मल्टीपल ऑप्शंस। तो अब हमें ध्यान रखना है, मैंने जब आपको पढ़ाया फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ाया, एवरी टाइम आई फोकस कितना था? ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा था फॉरेन ट्रेड पे। कैसा था? वॉल्यूम ऑफ डायरेक्शंस किसकी तरफ थे? ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटेन तरफ थे। हमारे बहुत ज़्यादा ट्रेड ब्रिटेन के साथ होते थे। हार्डली फ्यू ट्रेड वॉज डन विथ पर्शिया, दैट वॉज पर्शिया, चाइना, राइट, एंड ईरान। इन कंट्रीज के साथ बहुत थोड़े ट्रेड होते थे। ज़्यादातर ट्रेड किसके साथ होते थे? हमारे ब्रिटेन के साथ। तो हम इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं? राइट, जल्दी से सोचो। यस, ऑप्शन बी, मोर देन हाफ, यानी कि 50% से भी ज़्यादा। ग्रेटर देन 50% ट्रेड वॉज डन और रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन ओनली। वेरी करेक्ट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया सेंसस इज कैरिड आउट वंस इन, अभी बताया मैंने, जल्दी से, ये तो सबको आ गया होगा, अभी बताया, एवरी 10 ईयर, राइट? सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। हर 10 साल में सेंसस काउंटिंग कैरी की जाती है हमारी कंट्री में, और अब 2021 के लिए सेंसस काउंटिंग होगी। अभी हमारा लास्ट जो सेंसस पीरियड चल रहा है, पॉपुलेशन काउंटिंग का जो पीरियड चला वो 2011 था, अब 2021 के लिए आएगी। So moving to the next question, which of the following part of India witnessed a decline in the dependency of workforce on agriculture sector during British rule? Answer for that question will be, जल्दी से सोचो क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझना है कि इंडिया का वो कौन सा हिस्सा था जहां पे वर्कफोर्स की डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर से कम हो गई थी। सो इट वॉज
Very correct. The answer is Rajasthan. Rajasthan is the state from where there was a decline in workforce dependency on agriculture. So now we are moving to some different type of questions. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कैसे दिया है कि आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं. देखो ध्यान से देखना, आपको यहाँ ऊपर 10 डेट्स दी हुई हैं, राइट. बट इन 10 डेट्स के लिए जो ऑप्शन है वो सिर्फ 8 ही हैं, यानी इन 10 डेट्स में से आपको 8 क्वेश्चंस के लिए डेट सिलेक्ट करनी है. सो हेयर विल बिगिन. सबसे पहले स्वेज कैनाल. इफ यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियो, आई हैव डिस्कस एवरीथिंग विद यू. सो हेयर वी हैव स्वेज कैनाल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच पीरियड. यस, 18वें नंबर मकान का 69 नंबर फोन नंबर 1869. नेक्स्ट डिस्को, अभी हमने डिस्कस किया. वेरी करेक्ट, 907. राइट. फिर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, सबको पता है भाई, कहाँ है इसका ऑप्शन, ये रहा 1947. राइट. इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे फिर आ गया, हमें बहुत अच्छे से याद है. अब 18 नंबर घर 1850. 1850 was the introduction of railway. Next, बैटल ऑफ प्लासी, दैट टू आई हैव डिस्कस विद यू. कब हुआ बैटल ऑफ प्लासी, जिसके बाद ही ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में अपनी पूरी पावर लेकर आ गए थे. सो बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मुगल्स. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहाँ पर हुआ, किस टाइम पीरियड में हुआ. जब हम 200 साल बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में 200 साल रह गए, सो इट इज बस बट ऑफ कोर्स 1757. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, 1757. राइट हियर. सो कहाँ तक हो गया हमारा, बैटल ऑफ प्लासी तक. ये सारे हमारे हो गए. अब क्या बचे हैं, 3. टाटा एयरलाइंस. हम किसकी बात कर रहे हैं, टाटा एयरलाइंस की. टिस्को तो हो गया ऑलरेडी, बट टाटा एयरलाइंस एविएशन सेक्टर व्हेन इट वाज लॉन्च बाय JRD टाटा इन 1932. राइट. तो कब लॉन्च हुआ था ये, 1932 में. राइट हियर. मूविंग टू द नेक्स्ट, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. वो भी हमने याद किया बहुत अच्छे से, वापस से देख लेते हैं. ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, हम बात कर रहे हैं 7th नंबर पॉइंट की. ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कब हुआ था, 1921 में. कहाँ ये ऑप्शन, ढूंढो जल्दी, ये रहा 1921. फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, अभी क्वेश्चन ऊपर MCQs में आया था. अब देखो डेट्स पूछी जा रही हैं, उसमें आ रहा है. तो डेट्स के अकॉर्डिंग हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं वापस से. फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कब काउंट हुई, 1881 में. इट इज अवेलेबल इन द ऑप्शन, यस इट इज अवेलेबल. सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो सॉल्व दी क्वेश्चंस. अगर इस तरह से पैटर्न आए एग्जाम में तो इस तरह हमको याद हो सकते हैं और हमें काफ़ी हद तक टेबल्स और डेट्स को याद कर सकते हैं. अभी इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं, दैट टू ऑन मैच दी फॉलोइंग. So now we'll begin with the last question segment, that is match the following in given columns. तो मैं फटाफट से फिर से सब कुछ देख लेना है. अब यहाँ पे कुछ डेमोग्राफिक बेस्ड, जो हमने डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ी थी उससे रिलेटेड कुछ सीरीज हैं, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इंडिकेट्स ओवरऑल on eve of independence. तो overall literacy rate on the eve of independence was less than 16. तो इसके लिए particularly आंसर क्या हो जाएगा, G. राइट. तो G से ये मैच हो रहा है, इसको हम यहाँ भी मैच कर सकते हैं. नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मैंने पढ़ाया था, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का फर्स्ट स्टेज बिफोर 1921. तो ये ऑप्शन अवेलेबल है, यस इट इज अवेलेबल. सो विल राइट हियर C. Yes, so it will match like this. Correct. Next, IMR यानी infant mortality rate on the eve of independence per 1000 में ये कैलकुलेट होती है. eve of independence पे IMR infant mortality rate बहुत हाई थी. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, J. करेक्ट. तो हम कहाँ जाएंगे IMR को लेकर के, J पर, दैट इज हेयर. सो 3 के लिए क्या ऑप्शन है, 218 per 1000 was the rate of IMR on the eve of independence. Moving to the next, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो जब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कितनी थी, बहुत कम थी, हमें पता है, हमने डिस्कस किया था, कितनी थी, 44. तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया इसके साथ, H. कौन सा ऑप्शन, H मैच कर गया. फिर प्रेजेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस थी, और प्रेजेंट क्या है, अब तो बहुत बेटर कंडीशन है ना हमारी, क्योंकि अब हम मेडिकली एडवांस हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हो चुकी हैं. तो प्रेजेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है,
68। तो इसके लिए क्या ऑप्शन हो गया? बी, करेक्ट। तो ये यहां पर मैच कर गया और ये यहां पर मैच कर गया, तो ये दो मैचिंग हो गई हमारी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। फीमेल लिटरेसी रेट एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी फीमेल की लिटरेसी रेट क्या थी? बहुत ज्यादा कम थी मेल के कंपैरिजन में। जब ओवरऑल ही लेस देन 16 थी, तो आप सोचिए कि फीमेल की क्या कंडीशन रही होगी। आज भी अगर हम देखें तो फीमेल लिटरेसी रेट कंपेयर टू मेल बहुत कम है हमारी कंट्री में। इट इज अबाउट 20% गैप. So the same manner we are having at the time of independence, that is female literacy rate, it was 7%. तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या हो गया? आई। तो सिक्स्थ का सही ऑप्शन क्या मैच हो रहा है? आई, करेक्ट हियर। मूविंग टू नेक्स्ट, प्रेजेंट IMR, यानी हमने पहले डिस्कस किया IMR एंड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर थाउजेंड कितनी थी? 218। अब पूछा प्रेजेंट यानी आज के टाइम में, तो हम 2011 के डेटा को कंसिडर करते हुए समझ रहे हैं सारी चीजें। तो 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग IMR एट प्रेजेंट है 40। कितनी है? 40। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसके साथ क्या मैच हो गया? प्रेजेंट IMR, यानी कि ए ऑप्शन। सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। फर्स्ट स्टेज हमने पहले डिस्कस कर ली, बिफोर 1921। तो सेकेंड स्टेज कब होगी? वेरी गुड, बहुत सिंपल था ये। तो ये रहा आंसर, आफ्टर 1921। तो इसके लिए क्या ऑप्शन फिट हो गया? एफ। क्या फिट हो गया? एफ, करेक्ट। लास्ट, नेक्स्ट, इंडियाज फॉरेन ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन इन परसेंटेज, हमने अभी डिस्कस किया, कितना ज्यादा था? मोर देन 50%। सो हियर इट इज इन परसेंटेज, हियर इट इज डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? इट इज डी ऑप्शन। सो विल मार्क हेयर डी एंड यू विल राइट हेयर टू। नाइन्थ के आगे क्या लिख दोगे? डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मोर देन 50% फॉरेन ट्रेड वॉर रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। Now the last matching, share of workforce of manufacturing during colonial period in the percentage, कितनी थी? लास्ट बचा हमारे पास, अब क्या बचा? कुछ नहीं, ई लिख दो फटाफट, 10, राइट। और हमें पता है कि जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन था एग्रीकल्चर का क्या था? एग्रीकल्चर का था 70 to 75%, राइट हेयर। तो इसका क्या था? 70 to 75%। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या था? 10%। और अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर का कितना था? जल्दी सोचो, याद आ गया? यस, 15 to 20%। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेल, और आपको वीडियो समझ में भी आ रहे होंगे, हमें क्वेश्चंस के डिफरेंट पैटर्न भी पता चल गए। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, एक मैचिंग में हमारे जो कॉलम्स बेस्ड होंगे उनसे रिलेटेड ऑप्शन आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे हो जाता है, इसलिए मैंने इसका एक कंप्राइज शॉर्ट फॉर्म तैयार कर दिया, जिसके बेसिस पे हम इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल आर लाइकिंग माई वीडियोज एंड अंडरस्टैंडिंग इंडियन इकोनॉमी so well with me. If it is so please do like, share and subscribe my channel, and also continue with the channel. So that's all for today. Thank you. Bye bye.